کہ وکلا کو اور لیگل ٹیم کو obstruct کیا گیا. اور ان دا مین وائل جب ہم اندر گئے فائنلی تو اعظم خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہو چکا تھا. کس نے بیان ریکارڈ کیا، کیسے کیا، کن حالات میں کیا، جبکہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی لیگل ٹیم تو باہر کھڑی تھی. تو اندر کیس کیسا چل رہا تھا، اندر گواہی کس کی ہو رہی تھی. تو آج لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی مکمل لیگل ٹیم کو اس مقدمے سے صبح سے باہر کر دیا گیا ہے. آج سے نہیں باہر کیا، یہ ہفتے والے دن سے باہر کر دیا گیا. 18 گواہ، میں دوبارہ کہتا ہوں 18 گواہ 9 بروز ہفتہ اور 9 گواہ صبح سے لے کر ابھی رات 8 بجے تک بند کمرے میں 2 ناتجربے کار وکیل جن کو جج صاحب نے اپوائنٹ کیا ہماری موجودگی میں. آئینی حق ہے، آئینی رائٹ ہے ہر کلائنٹ کا، ہر اس شخص کا جو کوئی قانونی مقدمہ فیس کر رہا ہو. آرٹیکل 10A، قانون شہادت، CRPC، سب اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں یہ آئینی رائٹ ہے. رائٹ ٹو لائر، رائٹ ٹو کاؤنسل، رائٹ ٹو ہیو اے لائر آف یور چوائس. مگر آج مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آئین، CRPC، پروسیجر، فیئرنیس سب دفن ہو چکی ہے. ختم ہو گیا ہے وکلا کا رول، ختم ہو گیا ہے وکیل صفائی کا رول. ہمارا کوئی کردار نہیں رہا. جس انداز سے اس مقدمے کو چلایا جا رہا ہے، ہم نے ایک مقدمہ اس سے پہلے دیکھا تھا جج دلاور صاحب کا، توشہ خانہ کا. یہ مقدمہ اس سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشر ہے جج صاحب کے اوپر کہ انہوں نے 18 گواہ 48 گھنٹے میں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ضمانت دی، سپریم کورٹ نے کہا، واضح کہا، یہ مقدمہ نہ سزائے موت کا ہے، نہ عمر قید کا ہے، نہ 14 سال کا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم اور آبزرویشن ہے. اور میں آپ کو پیشن گوئی کر دیتا ہوں وقت سے پہلے کہ جج صاحب اس حکم کو، جیسے انہوں نے پیچھے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی حکم نہیں مانا، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے فیئر ٹرائل نہیں کیا. یہ زندگی میں پہلا مقدمہ دیکھا ہے سائفر کا جو بار بار گرتا تھا، بار بار لڑکھڑاتا تھا، بار بار ختم ہوتا تھا، مگر اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا تھا. جج صاحب پر بار بار اعتراض کیا کہ ہم ہمیشہ آپ سے کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پیش ہوتے ہیں، آپ اس کیس میں زیادتی نہ کریں، آپ وکلا کو ان کا رول ادا کرنے دیں، آپ ہمیں کراس ایگزامن کرنے دیں. بیسک رائٹ ہے. ہر مقدمے میں وکیل صفائی کے پاس صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے لڑنے کا، ایک پین جس سے ہم محنت کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں، اور 2 جب ہم گواہ سے سوال جواب کرتے ہیں، سچ جھوٹ کا تعین ہوتا ہے. تو آج جو کراس ایگزامینیشن جس کو جرا بولتے ہیں، جو ہمارا قانونی حق ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ایک وکیل کو مقدمہ لڑو، تو وہ مقدمہ کوئی کشتی نہیں کرتا، وہ صرف سوال پوچھتا ہے. اور یہ ایک پروسیس ہے کراس ایگزامینیشن کا، اور یہ ہر ملزم کا رائٹ ہے کہ اسے اپنی پسند کا وکیل ملے جو یہ کام کرے. سو یہ کیس واحد کیس بچا تھا جس میں سزا کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اس کا نیکسس اور کنیکشن مجھے تو 8 فروری کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہوا یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی، اتنی ہیسٹ، اتنی پیس، اتنی ریس کیوں دی جا رہی ہے کہ فیئرنیس کے اور فیئر ٹرائل کے تمام آپ اس کی دھجیاں اڑا دیں. آج نہ صرف سائفر کیس میں یہ ہوا، بلکہ
कोर्ट टाइम कितने बजे खत्म हो जाता है? बड़ी अजीब बात है। कोर्ट टाइम तो 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या कर रहे हैं आपके पास 8 बजे? मैं नहीं, इस वक्त साइफर का ट्रायल अंदर चल रहा है। कैसे अफसोस की बात है कि केस चल रहा है, वकील बाहर हैं, सारे वकील आपसे बात कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उम्मीद है इन हालात में, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि जो लोग जिंदा हैं, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं 2024 में, उन लोगों को आपके कमांड में, आपकी बतौर चीफ जस्टिस उन लोगों को फेयर प्रोसीजर, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। इन जज साहब को रोकना चाहिए कि ये कोई फैसला ना करें। ये ऐसे मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है कि रातों रात या अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कोई चारा ना हो कि हम इस पूरे इक़दाम को, हमें बाहर निकाले जाने को, 18 गवाह रिकॉर्ड होने को, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमारी दरखास्त है कि वो इंटरवीन करें, सुबह इसका खुद सुओ मोटो नोटिस ले लें। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तमाम वकला, वी आर ऑल एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अगर हमें बाहर निकाल के, तो वकीलों का किरदार, वकीलों का रोल खत्म हो गया। फिर किसी मुकदमे में किसी को वकील करने की जरूरत नहीं है, किसी मुकदमे में सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। अगर मुकदमों को इसी तरह चलाया जाना है और इसी तरह चलाया जाता है और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली खत्म किया जाता है। यही अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमेशा से होता आ रहा है और हो रहा है। आज जेड भुट्टो का केस खोला जाए उसको इंसाफ देने के लिए, तो क्या फायदा? आज परवेज मुशर्रफ का केस खोला जाए, इंसाफ दिया जाए, तो क्या फायदा? और आज अंदर दो, लेट मी से 70+ वेरी सीजन्ड, ऑनेस्ट, अपराइट, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का ट्रायल हो रहा है, और जैसे उनका ट्रायल चला 3 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने तमाम की तमाम कार्रवाई उन्होंने विशिएट की। सो हमारा ये मौक़िफ़ कि जज साहब मुकदमा ठीक चलाने की सलाहियत नहीं रखते, उसको पूरी सपोर्ट मिलती है कि ये मुकदमा 2 दफा खत्म कर दिया। एक और बात मैं आपको बताता चलूं, जज साहब ने हमें ये कह के बाहर निकाला, आप लोग ताउन नहीं कर रहे। जनवरी 2024 में ये ट्रायल शुरू होता है और जनवरी खत्म नहीं हुआ, जनवरी में ही है। तो आज बाहर निकाल दिया कि कॉपरेट्स नहीं कर रहे। आखिरी दफा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जुमे वाले दिन 4 गवाह रिकॉर्ड करते हैं और मेडिकल ग्राउंड पे 1 दिन की रुखसत पे जाते हैं। मेडिकल ग्राउंड, उनकी मेडिकल ग्राउंड के होते हुए ये केस गैर मौजूदगी में शुरू किया जाता है। रात के अंधेरे में 2 सरकारी वकील ना तजर्बेकार, हमें साइफर केस की अपने तमाम तजर्बे के बावजूद महारत नहीं हो सकी। 2 नौजवान वकला जिनका कोई तजर्बा नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं या नहीं, उनको ये मुकदमा थमा दिया जाता है और वो स्याह करें या सफेद करें, 18 गवाह उन्होंने हैंडल किए, हमने नहीं किए। इस केस का तो ऑफ कोर्स इंजाम बहुत बुरा होगा, मगर जो आपको बताने की बात है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, उनके होते हुए अगर रावलपिंडी अडयाला जेल में इस वक्त रात को 8 बजे ये हो रहा है, तो आई थिंक इट कॉल्स फॉर इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट redressal of our grievance और immediate hearing and opportunity tomorrow morning कि इस मुकदमे में क्या हो रहा है और जज साहब को रोका जाए जो वो करने जा रहे हैं, which is written on the wall, कि वो इमरान खान साहब को कोई खौफनाक सजा सुनाने का पूरा इरादा, सुनाकर ही घर जाकर आज सुनाकर ही वो घर जाना चाहते हैं। कोर्ट टाइम तो 3:30 का खत्म हो गया है, जल्दी किस बात की है?
तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कि हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको इन हालात से आगाह किया जा रहा है। आपको छोटे कमरे आप जी छोटे कमरे में जो करेगा, छोटे कमरे में अदालत तब्दील करके, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आज इमरान खान साहब का दूसरा मुकदमा तोशा खाना केस, जिसमें आज इमरान खान साहब ने अपनी नई लीगल टीम मुकर्रर की। आज एक नया वकला का पैनल आज आया। ज़हीर अब्बास साहब लाहौर से तशरीफ लाए, वो नैब के केसेस में महारत रखते हैं। उन्होंने आज जब जिरा का आगाज करना चाहा, पहला दिन था उनका, ना उनके पास फाइल है, ना उनके पास एविडेंस है, ना उनको मुल्जिम से बातचीत का मौका मिला। उनको भी बावजूद इसके कि उन्होंने वकालतनामा दिया और असिस्टेंस देने की कोशिश की, इसी जेल प्रेमिसेस में तोशा खाना केस में जो राइट ऑफ डिफेंस है, दिफा करने का हक, दूसरे जज बशीर साहब ने भी तोशा खाना मुकदमा नैब में डिफेंस स्ट्राइक ऑफ करके कि मैं कोई हक नहीं दूंगा आपको सफाई पेश करने का, ये तो कभी हुआ ही नहीं। और उन्होंने भी इसको 342 यानी कि फाइनल फैसला ही समझे सुनाने के लिए ये मुकदमा महफूज हो गया है कल सुबह के लिए। तो ऊपर नीचे इमरान खान साहब के मुकदमे, मैं आपको ये बात बताता चलूं, जिस दिन इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जमानत हुई, एक इजाफी नोट दिया गया। मिस्टर जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का वो इजाफी नोट है मंसूर अली शाह साहब के नोट के बाद, जिसमें उन्होंने जमानत दी और खास तौर पे नोट किया ये मुकदमा ना सजाए मौत का है, ना उम्र कैद का है, ना 14 साल का है। ये ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोग मौजूद थे जब आपने इसकी कवरेज की, तो आप देखिएगा कि जज साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की समझ आती है या नहीं आती। सो अतर मिनिल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में 4 सफ़े उन्होंने लिखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये दोनों लोग जो इस वक्त साइफर का मुकदमा फेस कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज देयर फंडामेंटल राइट। वकला भी जो खान साहब को अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तैमूर मलिक कर रहे हैं फ्रॉम मुल्तान, अपनी कैंपेन छोड़ के आते हैं। बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो भी अंदर हैं इस वक्त सुबह से, वो भी अभी आपसे कुछ देर में बात करेंगे, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो तमाम वकला के होते हुए, और जज साहब को हमने बार बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि आप अब इस मुकदमे में एग्जिस्ट ही कहीं नहीं करते। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वकला का रोल ही पाकिस्तान से खत्म हो जाए, लीगल प्रोफेशन ही खत्म हो जाए, राइट टू डिफेंस ही स्ट्राइक ऑफ हो जाए, फंडामेंटल राइट्स टोटली कोलैप्स हो जाए और बंद कमरों में जेल के अंदर रात 8 बजे तक डूबियस, सस्पिशियस और सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अमल में लाई जाएं। सो मैं एंड में यही एक दफ़ा फिर इल्तिजा करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि उनकी फौरी इंटरवेंशन की, और इस मुकदमे में हेवंस विल नॉट फॉल अगर जज साहब को रोका जाता है कि कोई भी सजा का कदम उठाने से पहले इमरान खान साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी और मौका दिया जाए कि वो आके बताएं कि उनके साथ आज बीती क्या। सर अगर साइबर केस में सजाए मौत हो जाए तो उसके बाद आपका क्या लाएमल होगा? क्या देखिए ये बात की बात है, मैं बात की बात है, मैं चाहूंगा सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब बताएं। देखिए ना कि हमें अगर हमारा राइट भी स्ट्राइक ऑफ किया है या हमें नहीं पेश होने दिया जा रहा, उसके लिए हमें रिवीजन में जाने के लिए हाई कोर्ट में ऑर्डर चाहिए होता है, जो कि ये थर्सडे से हमें कोई ऑर्डर नहीं दे रहे ये जज साहब, किसी किस्म का कोई ऑर्डर नहीं दे रहे। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि ये ओपन ट्रायल होगा। आज आप देख लें सारे बाहर हैं, आप में से चंद लोग अंदर थे और जो बंद कमरे में ट्रायल हुआ उसमें से आप में सिर्फ एक साथी मौजूदा हो, बाकी आप हालात देख लीजिए खुद ही सारे। अपॉइंटेड जो डिफेंस काउंसिल है उसको इस केस में इंजेक्ट करने की वजूहात क्या बयान की अदालत ने, और आपको जी वो आपको जेल का रिकॉर्ड बताएगा कि वो इस केस के अवाइल में प्रोसिक्यूशन के साथ उनकी टीम का हिस्सा बनकर अंदर आते रहे हैं। बाकी आप अक्लमंद लोग हैं,
नहीं, देख अदालत ने लीजिए, वजह बयान फिक्स किया मैच हो रहा है, कि फिक्स मैच। सर बताएं, रात को 12 बजे आपसे बल्ला छीन लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, आप क्या सुप्रीम कोर्ट में एतवार करके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट जाएंगे? देखिए, मुझे इस वक्त ज़हन में ये बात आई है कि अब से आधा घंटा पहले इमरान खान साहब ये कहकर उठ गए, मुझे बुला के खुदाफिज कह के, कि मैंने ज़िंदगी में कभी फिक्स्ड मैच ना खेला, ना देखा, ना बैठना चाहूँगा, मैं तकलीफ में हूँ, मैं जा सकता हूँ। मैंने कहा सर, यू आर फ्री टू गो। सो ये उनका कंक्लूडिंग रिमार्क था कि फिक्स्ड मैचेस